चालेल की. हां. First of all, let me thank you for coming here today. We are gathered here to participate in CBSE training program. I am present before you as resource person for today in-house training session. I welcome you all and once again thank you for joining us. As you can see on the screen, our today's topic is developing scientific temperament. Scientific temperament among citizens of India, scientific temperament among us, we people, and scientific temperament among children of our school and in all schools. Today, whatever I am going to discuss with you, all is not a part of any academic syllabus. It does not carry marks in any examination. It is only the part of our thinking, how we think, how we take a situation and how we think over it. What is our thinking for a particular situation? This is the topic of today's in-house program. Among the several goals of education, we know that there are different goals of education. The one that appeals to us the most is developing scientific temper. Scientific temper is in an attitude that we need to develop. It is a way of our life that we must have in our personality. Our personality should be full of scientific temperament, scientific temper. Next. The idea of inculcating scientific temper is not new. Our former prime ministers have done a lot to develop scientific temper among the citizens of India. Our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, in his famous book, we all know that book, Discovery of India, he said that the scientific approach and temper are or should be a way of life, a process of thinking and a method of acting and associating with our friends, our citizens. He was the first person to introduce the term scientific temperament. Next one, our loving and respected Prime Minister Atal Bihari Vajpayee given a slogan to us, Jai Jawan, Jai Kisan and Jai Vigyan. For this great gift of scientific temper, I think we should thank our great leaders. Okay, let us have a look at present. What is our mindset in 21st century? I would request you all to have a look on screen. Mouse.
कि अंतरिक्ष में अपना परचम लहराने लगा है। विकास की इस लहर को कायम रखने के लिए ये जरूरी है कि हम लोगों में ज्ञान की अलख जगाएं, ताकि विज्ञान बस किताबों तक सिमट कर न रह जाए, बल्कि जन जन के जीवन का हिस्सा बने। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। आइए नई सोच और नई खोज को बढ़ावा दें और अंधविश्वास को मिटाएं। साथ आए, कर्तव्य निभाएं। After have a look on screen, we have seen that what is the view of our prime ministers. But would you be surprised if I tell you that on adding scientific temper in your personality, you are going to exhibit patriotism towards our country. मेरा कहना है कि क्या साइंटिफिक टेम्पर को अगर हम ऐड करें अपने पर्सनालिटी में, अपने थिंकिंग में, अपने विचार में, अपने माइंडसेट में, तो क्या ये देशभक्ति है क्या? ये देशभक्ति है क्या? ये बात मैं जानना चाह रहा हूँ कि साइंटिफिक टेम्पर को अगर हम अपने माइंडसेट में ऐड करते हैं, अपने विचारों में ऐड करते हैं, तो ये पेट्रियोटिज्म है? अगर है तो किस तरह? Yes. Yes, it is a kind of, if we are talking about, if we have scientific temperament in us, then if it kind of patriotism or not, I am completely agree with this statement. If we are having a scientific temperament, scientific behavior and scientific thinking, then we will do a new development or innovative work inside our country and also for the other country. If we are doing for our country and also for the other country, then this is the development of our own country and for whole the world. Very good, thank you. Do you know India is the first and the only country to recognize and adopt the scientific temper in its constitution? We know that in our constitution there are several fundamental rights. Our constitution allows us to enjoy fundamental rights. But you must know that in our constitution there are some fundamental duties too. हमारा जो संविधान है, उस संविधान में हमारे जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने हमें बहुत सारे एंजॉय करने के लिए अधिकार दिए हैं, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और उन फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ उन्होंने हमें वादा किया है, कहा है कि नहीं, every citizen have some fundamental duties. ड्यूटीज भी है, कर्तव्य भी है। और हमारा जो संविधान है, उस संविधान में इस बात की चर्चा है, आर्टिकल के रूप में चर्चा है। Our constitution identifies 11 fundamental duties which our constitution expects we citizens to follow. Article 51A(h) says that it shall be the duty of every citizen of India to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. So, scientific temper is our duty according to Constitution also. It is a duty of every citizen to develop scientific temper among us and among every citizen of India.
Next. Okay. Now let us discuss what is the importance of developing scientific temper. क्या इसका उपयोग है? आगे हम लोग क्यों कह रहे हैं कि साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना चाहिए, हमें करना चाहिए अपने बीच में, अपने लिए, हमारे बच्चों के बीच में जिन्हें हम पढ़ाते हैं उनका भी साइंटिफिक टेम्पर का विकास हो। और संविधान का तो ये मानना है कि जितने सिटीजन हैं इंडिया के उन सभी में साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। ये The development of scientific temper aims to drive away the superstitions, अंधविश्वास को भगाने में बहुत उपयोगी है, and the religious beliefs which have no scientific basis, no logic, and bringing up a society which is free of many irrational practices. बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस हैं जो हम लोग करते हैं, कभी हमने सोचा नहीं ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में कोई हमारा थिंकिंग नहीं है, बस वो होते आ रहा है तो हम करते आ रहे हैं। इसके बारे में लॉजिकली कभी हमने सोचा नहीं, तार्किक ढंग से सोचा नहीं, तो ये रोबोटिक बिहेवियर है। वी आर नॉट ए रोबोट, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हम लोग आदमी हैं, तो आदमी का एक ब्रेन है, सुपर कंप्यूटर। हमारा जो ब्रेन है वो क्या है? सुपर कंप्यूटर, कंप्यूटर से बहुत आगे है। तो निश्चित रूप से हमें कोई भी काम करने से पहले उसके ऊपर सोचना चाहिए। लेकिन आज का क्या है कि जो 90% लोग हैं वो जो होते आ रहा है उसको मान लिया है और उसके अनुसार एक्ट कर रहे हैं। नाउ वी शुड नो व्हाट साइंटिफिक टेम्पर रियली मीन्स। इसका मतलब क्या है? साइंटिफिक टेम्पर का क्या मतलब है? साइंटिफिक टेम्पर इज ए मोडेस्ट ओपन माइंडेड टेम्पर। इट इज ए टेम्पर which is ever ready to welcome new knowledge, new ideas and new experiences. कोई भी बात एक साइंटिफिक टेम्पर्ड जो लोग होंगे, जिनका की वैज्ञानिक सोच होगा, वो कभी भी नए आइडिया को, नए विचार को स्वीकार करने में देरी नहीं करेंगे। वो बायस्ड ब्रेन नहीं होगा। पहले से एक होता है कि हमारा ये माइंडसेट है, उसको नहीं बदलेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या है कि प्रत्येक आइडिया को वेलकम करना। ठीक है, हम मानेंगे नहीं भी मानेंगे, लेकिन उस पर लॉजिकली हम विचार तो कर सकते हैं, थॉट कर सकते हैं, सोच सकते हैं, आइदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो इसको हम सोच सकते हैं। तो इस तरह से साइंटिफिक टेम्पर क्या करेगा कि किसी भी आइडिया को हम स्वीकार करेंगे, उस पर विचार करेंगे। अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो कम से कम विचार करने के लिए स्वीकार करेंगे, इतना तो हो ही सकता है। An attitude of logical and rational thinking, scientific temper has not much to do with education and literacy. Education और literacy अलग पार्ट है, scientific temper अलग पार्ट है। ऐसा नहीं है कि scientific temper से एग्जामिनेशन में कोई मार्क्स मिलने जा रहा है या हमें कोई धन की प्राप्ति होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। साइंटिफिक टेम्पर क्या है? हमारा एक सोचने का दशा है, दिशा है कि हम कैसे सोचेंगे, हमारा सोच क्या रेशनल है या इरेशनल है। जरा स्पीड में नहीं पढ़ाइए सर, मेरे बोलने में पढ़ाइए, ठीक है ना। व्हाट इज रेशनल थिंकिंग? वी शुड नो द एक्चुअल मीनिंग। रेशनल थिंकिंग इज ए प्रोसेस विच इज बेस्ड ऑन रीजन एंड लॉजिक। तर्क के आधार पर होता है, कारण के आधार पर होता है। हमारा जो थिंकिंग होगा, हमारा जो सोच है, वह क्या तर्क के आधार पर है, क्या लॉजिक के आधार पर है, ये ऐसे ही हम मान लेते हैं किसी बात को। Now here is a question: how can we identify whether a person has a rational thinking or irrational thinking? The answer is very simple. If the person takes the decision which are based on reason, logic, facts, any of these or maybe all, सब कुछ हो सकता है, but not on the basis of emotions and religious beliefs, then we can definitely say that the person has rational thinking. मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सोच है क्या वो फैक्ट के आधारित है,
रेशनल है, तार्किक है, अगर ऐसा है तो हमारा जो सोच है वो रेशनल है, तर्क के आधार पर है, कारण पर आधारित है, फैक्ट पर आधारित है। और अगर हम इमोशंस में कोई निर्णय लेते हैं, भावना के बसीभूत होकर के, जो हमारा बिलीव है, जो हमारा धर्म है, उसके हिसाब से जो बिलीव्स है उसके आधार पर लेते हैं, तो इसको हम कभी भी रेशनल थिंकिंग नहीं कहेंगे, इसको इरेशनल थिंकिंग कहेंगे। जो सर्वे है, सर्वे says that in our country the percentage of rational thinkers are far below 50%। 50% से भी कम लोग हैं जो रेशनल थिंकर्स हैं। 50% से भी कम लोग हैं जो रेशनल थिंकर्स हैं, यानी तर्क के आधार पर जो सोचते हैं, ऐसे सोचने वाले 50% लोग हैं, इससे ज्यादा नहीं है। अब इसको जानने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से हम डिसाइड करेंगे, समझेंगे कि जो हमारा थिंकिंग है, रेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है। आप देख सकते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, समस्या को आइडेंटिफाई करना, एक्चुअली समस्या क्या है, इनफैक्ट है क्या। सेकंड वन, एस्टैब्लिश डिसीजन क्राइटेरिया, जो हम डिसीजन लेंगे उस पर कोई समस्या आ गई, उस पर जो डिसीजन लेने वाला उसका क्या क्राइटेरिया, क्या बेसिस है। और थर्ड है कि वे डिसीजन क्राइटेरिया, जो डिसीजन क्राइटेरिया है उसका माप करेंगे कि कौन सा क्राइटेरिया सही है, कौन सा क्राइटेरिया गलत। इसके बाद नेक्स्ट प्लीज, इसके बाद जनरेट अल्टरनेटिव्स। वो जो क्राइटेरिया हमने लिया है तो क्या उसका अल्टरनेटिव कोई है क्या, कोई और क्राइटेरिया हो सकता है क्या। अगर हो सकता है तो उसको भी वे करेंगे, नापेंगे, तोलेंगे, देखेंगे कि कौन सा क्राइटेरिया अच्छा है। और इसके बाद इवेल्युएट करने के बाद जब सारे अल्टरनेटिव्स को हम इवेल्युएट करेंगे तो बेस्ट अल्टरनेटिव को हम चूज करेंगे कि कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव है, कौन सा बेस्ट मेजरमेंट है। और फिर जो सेलेक्ट करेंगे बेस्ट अल्टरनेटिव, उसके आधार पर हम डिसीजन लेंगे। At this moment, before you proceed further, I would like to think, do you have an attitude of logical and rational thinking? हम अपने आप से पूछेंगे, don't tell me, मुझे नहीं कहना है, आपसे मैं पूछ नहीं रहा, ठीक है ना। Please ask yourself, आप खुद से पूछें कि क्या हमारा जो थिंकिंग है वो रेशनल है या नहीं। If you have, then it's excellent, but if you don't have, प्लीज बी ए रेशनल थिंकर। अगर नहीं है तो हमें होना चाहिए एक रेशनल थिंकर, लॉजिक थिंकर, निश्चित रूप से होना चाहिए। Till now we have discussed rational thinking, which is an important part of scientific temper. Moving ahead, we should know that what are the pillars of scientific temper. बात तो बहुत सारी हो गई कि साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, हमारा जो सोच होना चाहिए वो रेशनल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, इसके कुछ आपको पिलर्स हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने की पद्धति होनी चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। दूसरा ऑब्जर्व करना है, हमें खुद से ऑब्जर्व करना है, किसी के कहने पर या पहले से ही कोई बात को कहा जा रहा है कि ऐसा होता है तो उसको नहीं देखना, हमें खुद से ऑब्जर्व करना है। जैसे मान लीजिए सूरज का उदय पूर्व से होता है, ठीक है, हम भी तो देख रहे हैं ना। किसी के कहने से हम नहीं मान रहे कि सूरज का उदय पूरब में हो रहा है और अस्त जो है पश्चिम में हो रहा है, या हम खुद ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्व करना है, हाइपोथेसाइज करना है और जनरल टेस्टेबल प्रेडिक्शंस बनाना है। हम खुद टेस्ट करेंगे उसको कि क्या ऐसा होता है वास्तव में या फिर नहीं होता, इसका एक प्रेडिक्शंस बनाना है। उसके बाद उसको एनालाइज करना है, एनालाइज करने के बाद एक थ्योरी हम बनाएंगे, हाँ ऐसा है या नहीं है, हमारा क्या सोच है, उस पर क्या सोच हमारा हुआ। तो फॉर्म ए थ्योरी और एनालाइज मच मोर टू फॉर्म ए थ्योरी। जब हम एक थ्योरी बनाएंगे तो उसके लिए हमको बहुत सारा एनालिसिस करना होगा और करना चाहिए। इसके बाद जो हमारा थ्योरी बना उसको लोगों के बीच, अपनों के बीच, हमारा जो सराउंडिंग है
सराउंडिंग में जो लोग हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना है। नाउ लेट अस डिस्कस द स्ट्रेटजीज टू इंप्रूव द साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर को किस तरह हम इंप्रूव कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू टू इंप्रूव साइंटिफिक टेम्पर इन आवर पर्सनैलिटी। ये साइंटिफिक टेम्पर जो विषय चल रहा है, जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, एक्चुअली ये हमसे रिलेटेड है, हमारे पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। ये किसी दूसरे को बताने की बात नहीं है, ये हमारी बात है, अपनी बात है। तो हम खुद में अपने पर्सनैलिटी में साइंटिफिक टेम्पर को किस तरह ऐड करें, इसकी बात हो रही है। What can we do to improve scientific temper in our personality? All the strategies which I will be discussing with you needs no special condition, no charge, no investment. कोई पैसा नहीं लगता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। You can just add these strategies in your personality and believe me, you will come out with another level of personality. अगर सही में हमारा साइंटिफिक टेम्पर हमारे पर्सनैलिटी में आ जाए, लॉजिकल थिंकर हम हो जाएं, तो हमारा एक जो पर्सनैलिटी है वह बिल्कुल बदल जाएगा और एक नया आदमी तो वही रहेंगे, लेकिन एक नया आदमी के रूप में हम आ जाएंगे। इसमें क्या क्या स्ट्रेटजी है, इसको मैं एक एक करके आपको डिस्कस करूंगा। द फर्स्ट स्ट्रेटजी इज it will be shown on screen. Okay. First of all, the strategy is sharpen your curiosity. Curious बनाना अपने आप को भी, बच्चों को भी, और हमारा जो सिटीजन है, अभी तो बोला मैंने, ये जो टर्म है ये संविधान में है, मतलब प्रत्येक नागरिक को साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। तो सभी में क्या होना चाहिए? सबसे पहला तो शार्पन योर क्यूरियोसिटी, शार्पन क्यूरियोसिटी ऑफ स्टूडेंट्स। दिस डेज आवर स्टूडेंट्स आर मोर मार्क्स ओरिएंटेड, नंबर पाने के लिए पढ़ते हैं, मोर सिलेबस ओरिएंटेड, नॉट क्यूरियोसिटी ओरिएंटेड। जानने के लिए नहीं पढ़ते, नंबर पाने के लिए पढ़ते हैं। मार्क्स चाहिए, नॉलेज मार्क्स के लिए चाहिए, ऐसे नॉलेज नहीं चाहिए, मार्क्स के लिए नॉलेज चाहिए। वी आर नॉट लुकिंग फॉर द थिंग्स दैट डज नॉट कैरी मार्क्स इन एग्जामिनेशन। वी आर नॉट गुड एनफ इन एनालाइजिंग थिंग्स हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग। कैन यू थिंक ऑफ द रीजन फॉर दिस बिहेवियर? The reason is poor curiosity quotient. Like intelligence quotient, there is curiosity quotient. People talk about intelligence quotient, IQ, but my friend, according to me, good CQ, curiosity quotient is more important than IQ, intelligence quotient. If your curiosity quotient is good, then you are on the right way to have scientific temper in your personality. But if you don't have, please try to improve it. अगर ऐसा नहीं है तो हमें अपना जो है उसको करना चाहिए, इंप्रूव करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। Let us check your CQ, curiosity quotient. I have some questions for you. These questions are not written in any academic book. I have just taken it from your daily life activities and the activities you are performing since a long time without knowing the reason behind it. बिना कारण जाने, without knowing the religious beliefs, without knowing the scientific reason. Please try to answer these questions in your mind. If you know the answer, then I must say your CQ, curiosity quotient, is good enough. अगर आप जानते हैं तो, और अगर नहीं जानते हैं तो अच्छा नहीं है। You can give religious knowledge if you want. अगर चाहते हैं तो धार्मिक जो बातें हैं वो भी आप बता सकते हैं, कोई बात नहीं है।
In Hinduism, rituals that we practice daily is not completely based on traditional beliefs, but there are many scientific reasons behind each and every ritual. On this note, my first question from all of you is here on the screen. Why do we do परिक्रमा प्रदक्षिणा in a temple? टेम्पल में हम प्रदक्षिणा क्यों करते हैं? For those of you who knows the answer, they can try next part of this question. Why always clockwise? प्रदक्षिणा तो हम करते हैं, लेकिन क्लॉकवाइज ही करते हैं या करना चाहिए, कभी भी एंटी क्लॉकवाइज नहीं करते। परिक्रमा या प्रदक्षिणा जो भी पे मंदिर में करते हैं, किसी मूर्ति के चारों ओर भी करते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? हमारा पूर्वज भी कर रहे थे, हम भी कर रहे हैं। मेरी माँ ने बताया कि बेटा मंदिर जाओगे ना तो भोला बाबा का पूजा करने से पहले एक बार घूमना 5 बार, तो हम कर रहे हैं। क्या आपने सोचा कभी कि माँ ने क्यों कहा? तो ये है साइंटिफिक टेम्पर कि हमको लॉजिकली इस पर सोचना चाहिए, आखिर क्यों परिक्रमा क्यों करना चाहिए, परिक्रमा करने का क्या बेनिफिट है, और फिर परिक्रमा करना चाहिए तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही क्यों करना, एंटी क्लॉक क्यों नहीं, इस पर विचार करना। अगर हम विचार करते हैं तो हम क्यूरियस हैं, सोचते हैं, पूछते हैं तो अच्छा है, नहीं पूछते हैं तो अच्छा नहीं भी है। अच्छा, ये जो बिहेवियर अभी हमने देखा कि परिक्रमा लोग कर रहे हैं बिना कुछ कारण समझे जाने, ये कौन सा बिहेवियर? इज इट ए बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग? नो, इट्स रोबोटिक बिहेवियर, रोबोट का बिहेवियर है। आदेश दिया, काम करना शुरू। हमारे माँ ने किया था ट्रेडिशनल बिहेवियर है, रोबोटिक बिहेवियर है। हम एक रोबोट बन जाते हैं, किसी ने कोई आदेश कर दिया, चाहे वह रिलीजन ने किया हो, चाहे हमारे जो पूर्वज है उन्होंने किया हो, जिसने भी किया, तो उनके आदेश कहीं न कहीं वो आदेश है, इनडायरेक्टली वो आदेश है, और हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो बिहेवियर है ये रोबोटिक बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर नहीं है, और निश्चित रूप से साइंटिफिक टेम्पर का बिहेवियर है। अगर साइंटिफिक टेम्पर है तो ऐसा बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन। ओके, लेट्स फाइंड आउट द रीजन answer today. In olden days, sites for temples were chosen after inspecting the magnetic field. ये जो परिक्रमा करते हैं इसके पीछे क्या कारण है? तो मैग्नेटिक फील्ड कारण है। सुन लीजिए। In the region, temples were constructed such that it acted like a toroid field, means magnetic field. We can understand it as magnetic field while our own body acts like a magnetic flux. This not the only reason. There are many more scientific reasons, as the temple or deity is usually surrounded by people, neem, and many herbal trees. The body inhales oxygen-rich air, and these trees produces 24-hour oxygen, pure oxygen in a day. Pradakshina, that is circumambulation on bare foot, regulates nervous system, improves sleep and wake cycle and overall functioning of the body. Answer to the next part of this question, why always clockwise? Clockwise ही क्यों होता है? Clockwise क्यों होना चाहिए? Anti clock क्यों नहीं होना चाहिए? तो our magnetic moment in the direction of Earth's magnetic field so as to gain energy from it. The scientific reason is that we try to amplify our magnetic moment in the direction of the Earth magnetic field. Earth का जो magnetic field है उसके direction, so as to gain energy from it. Human body generates its unique magnetic field due to blood flow. क्योंकि हेमोग्लोबिन है हमारे ब्लड में, आयरन कंटेंट है, मैग्नेटिक मटेरियल है आयरन,
moving in a circle around a diagram cause the intersection of human magnetic field with temporal magnetic field, and this interaction evolve a new set of magnetic rays beneficial to humans. हमारे लिए जो benefit करता है, beneficial होता है. We are human, we have our own brain. We can try to find out the reason, but we are performing such activities without knowing any concrete reason. This is one question. ये एक क्वेश्चन था कि क्या हम क्यूरियस हैं, क्या हम सोचकर ही काम करते हैं या फिर ऐसे ही करते हैं. Another question is there on the screen. Why do we blow up candles on birthday? आजकल फैशन हो गया है बर्थडे में कैंडल को बुझाने और ताली बजाना, हैप्पी बर्थडे टू यू. ठीक है, तो why do we blow off candles on birthday? Though it is considered inauspicious to extinguish a burning flame according to Hindu mythology. हिंदू जो हमारा जो विचार है, हमारा जो सोच है, इसके हिसाब से जल्दी लौ को बुझा देना ये ठीक नहीं है, अशुभ माना है, inauspicious है. Please think in your mind. I will not give you answer for this question. आपको आंसर नहीं देने जा रहा, आप खुद सोचिए आखिर ये इसको क्रिश्चियन जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं वो इसको शुभ कैसे मानते. एक्चुअली क्या बात है कि उनका थिंकिंग अलग है, हम उस तरह से नहीं सोच पाते. वो क्या सोचते हैं, उनका सोच ये है कि जब उनका बर्थडे होता है तो मोमबत्ती को बुझाते हैं और मोमबत्ती को बुझाने के बाद चूंकि वो वैक्स है, हाइड्रोकार्बन है, तो उससे धुआं निकलता है और वो जो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, व्हाइट फ्यूम्स निकलता है. वो फ्यूम्स के थ्रू वो वहां पर प्रे करते हैं गॉड्स, और उनका मानना है कि गॉड के पास ये जो फ्यूम्स है ना, ये वातावरण में फैलेगा और अंत में कहाँ जाएगा, गॉड के पास जाएगा. हमारा जो प्रे, हमने जो विश किया, जो हमने मांगा, वो ईश्वर के पास चला जाएगा. ये उनका बिलीफ. तो ये हमको जानना पड़ेगा कि है तो उनकी परंपरा, वो कर रहे हैं कैंडल को बुझाने का काम, हम भी बुझा रहे हैं. हम क्यों बुझा रहे हैं, हमारा सोच क्या है बताइए. कोई बर्थडे मनाते हैं तो कोई ऐसा विश है जो ऐसा सोचते हैं, तो लोग बस केक खाने के फेर में रहते हैं, जल्दी जल्दी केक पीने में पास. तो कहने का मतलब ये है कि सोच होनी चाहिए क्यों होता है, ऐसा बिलीव क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या करते हैं, ये बात को जानना बहुत जरूरी है. Next strategy is understanding your religious thought, its philosophy instead of rituals. Since I belong to Hindu religion, I will take example of Hindu philosophy. Please mind it, I am not against religion. I am just saying that know the philosophy of our religion. हम धर्म के विरुद्ध नहीं है, लेकिन क्यों कोई काम करते हैं, इसके पीछे क्या फिलोसफी है, ये हमको निश्चित रूप से जानना चाहिए. Apart from Buddhism, Hinduism is the only religion which allow one to be atheist, still be a Hindu. हम नास्तिक हो सकते हैं, हम नहीं मानते हैं मूर्ति पूजा को, फिर भी हम हिंदू हैं. अब देखिए आज समाज में क्या होता है, आज समाज हिंदू है कि नहीं, आज समाज के जो मानने वाले हैं वो हिंदू है या नहीं है, वो भी हिंदू है. लेकिन कोई ऐसा इस्लाम मानने वाला मिलता है क्या जो अल्लाह को नहीं मानता, ऐसा कोई क्रिश्चियन है क्या जो ईसा मसीह को नहीं मानता, ऐसा नहीं है. सिर्फ हमारा ही धर्म, हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें हमको कोई भी चीज को मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया है. वी आर नॉट बाउंडेड. मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो भी ठीक है, और तब भी हम हिंदू हैं. I think it is important to know the principles of Hindu philosophy, because following a religion without knowing its philosophy is once again describes a robotic behavior. ये भी robotic behavior होगा, आपको जानना चाहिए. It is responsible for degradation of scientific temper. So please have a look on the screen. First one is rebirth.
सेकेंड वन इज सेल्वेशन, दैट इज मोक्षा, मोक्ष की बात करते हैं हम लोग। थर्ड इज नॉन ड्यूअलिटी। नॉन ड्यूअलिटी क्या होता है? एक ही जो परम पिता है, सत्ता उसकी हम मानते हैं, उन्हीं का सब है। ये हम लोग अलग अलग नहीं हो सकते, सेपरेट नहीं हो सकते, ये नॉन ड्यूअलिटी है। इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द एंटिटी वी आर। फोर्थ क्या है? डेस्टिनी। कहता है ना कि वो क्या लेके आए हैं और क्या लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लेकर नहीं आए और कुछ भी लेकर नहीं जाना। हम लेके आए, भाग्य लेकर आते हैं और अपना कर्म लेकर जाते हैं। लेकर आते भी हैं, लेकर जाते भी हैं। तो ऐसा है नहीं कि हम लेकर नहीं जाते। तो और है एक्सट्रीम टॉलरेंस, पांचवा डेस्टिनी के बाद। हिंदुइज्म इज द ओनली रिलीजन which never insists us to worship a particular god or goddess, to wear a particular cloth, everything is up to you. आपको नहीं कहता कि ये पहनो ये नहीं पहनो। इस्लाम में कहता है ना बुर्का पहनना। हिंदू का कोई ड्रेस है क्या? कुछ नहीं, कोई कोड नहीं, ड्रेस कोड नहीं है। बस आप जैसे रहना चाहते रहिए, फिर भी आप हिंदू हैं। लाइफ इन 4 आश्रम्स, जो हमारा सोच है, छठा जो हिंदू धर्म का विश्वास है, क्या क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, और रिटायर होने के बाद कौन सा होता है? और सबसे लास्ट में संन्यास आश्रम। तो 4 आश्रम है हमारा, ठीक है। तो 4 आश्रम का देखिए, हमारा जो धर्म है बहुत ही लॉजिकल और रेशनल थिंकिंग के आधार पर है। इसमें साइंटिफिक टेम्पर है, बस हमको ढूंढना है कि क्या इसमें है, इसके पीछे कारण क्या है। इसको ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना। और मेरा दावा है कि अगर हम अपने धर्म का जो मत है, जो विश्वास है, उसको अगर एक बार सोचें, समझने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से मेरा दावा है कि हम तो हिंदू हैं ही, और दूसरे लोग अगर इसके फिलोसफी को समझें तो मुझे लगता है कि दुनिया में हिंदू छोड़कर कोई बचेगा। सारे लोग हिंदू। हमारा जो फिलोसफी है बहुत ही क्या कह सकते हैं कि बेस्ट फिलोसफी है हिंदू धर्म का। लास्ट प्रिंसिपल जो सबसे बेस्ट प्रिंसिपल है वह है वन्यवादिका रस्ते मां फलेशु कदाचित्। ये तो आप लोग समझ ही रहे हैं, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, या हम समझा भी नहीं रहे, बस हम जगा रहे हैं, समझा नहीं रहे, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें कुछ जो स्ट्रेटजी की चर्चा कर रहे हैं वह है अपोज पब्लिक ऑब्स्टिनेसी। मेरा कहना है कि पब्लिक का जो ऑब्स्टिनेसी है, जो भी मत है, उसको अपोज करना जरूरी है। ये नहीं कि कुछ भी कह दिया उसको मानेंगे, नहीं भी माने, ऐसा नहीं है, उस पर विचार करना। लेट मी पुट अप एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक ऑब्स्टिनेसी। डू यू नो द नंबर ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस दैट वी हैव इन इंडिया आर मच बिलो देन द नंबर ऑफ टेम्पल्स। आपको पता है कि हमारे देश में जो स्कूल है, कॉलेज है, और उसकी तुलना में जो है मंदिर ज़्यादा है। अभी भी अगर चंदा मांगने कोई आ जाए घर पे, तो मंदिर के नाम पर अगर चंदा मांग रहा है तो हम दे देते, ठीक है ना। लेकिन स्कूल के नाम पर चंदा मुझे नहीं लगता कोई मांगता है। विद्या मंदिर ही मांगता था। हम लोग जाते थे, नया स्कूल खोलना है, लोगों से सहयोग लेते। हमारी सोच ऐसी थी, इसको छोड़कर और कहीं पर भी स्कूल के लिए कोई चंदा नहीं मांगता, मंदिर के लिए जरूर मांगता है। तो मंदिर का चंदा होता है, इसीलिए मंदिर सबसे ज्यादा है। जितना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज सब मिला करके है, उससे कई गुना ज्यादा हमारे देश में मंदिर है। और आज भी प्रत्येक गांव में मंदिर पर मंदिर, मंदिर पर मंदिर खुल रहा है। इसको सोचने की जरूरत है। धर्म के विरोध में हम नहीं कि मंदिर की इतनी संख्या होना जरूरी है क्या। डोंट बी ए पार्ट ऑफ पब्लिक ऑब्स्टिनेसी, प्लीज अपोज सच पब्लिक ऑब्स्टिनेसी। इसको अपोज करने की जरूरत है। जो लोग बोल दिया वो हमने मान लिया। मंदिर को स्थापित करना जरूरी है, स्कूल को करना है, कॉलेज को करना, ये सोचना पड़ेगा। स्ट्रेटजी नंबर 4 is believe only if a conclusion is statistically valid. Statistically valid, सांख्यिक रूप से अगर वैलिड है
तो उसको मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। किसी के कहने पर नहीं मानेंगे। ये रेशनल बिहेवियर है, ये थिंकिंग जो होगा ये वैज्ञानिक। Whatever conclusion you got, it should happen frequently. ये बार बार हो रहा है, और एटलीस्ट फॉर मोर देन 50%। बार बार अगर नहीं भी हो रहा है, कम से कम 50% टाइम्स ऐसा हो रहा है कि सेम थिंग इज हैपनिंग, एक ही चीज हो रहा है, तो हम मान सकते हैं कि ऐसा सही है। दिस इज हाउ वी कंफर्म स्टैटिस्टिकली वैलिड। लेट्स टेक ए वेरी कॉमन एग्जांपल। सन राइजेज इन द ईस्ट सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर। सूरज जो है पूरब से उगता है, बहुत दिनों से उग रहा है, हमको लगता है शुरू से ही उग रहा, ठीक है। दिस इज 100% ट्रू। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग, सो वी कैन से इट इज स्टैटिस्टिकली वैलिड। रोज उगता है, इसलिए हम इसको नकार नहीं सकते। अगर इसका ऑब्जर्वेशन किया जाए तो 100% ऑब्जर्वेशन क्या है कि सही है, हाँ सूरज तो पूरब में ही उगता है, ये कभी पश्चिम में आज तक उगा नहीं। ऐसा बिलीव जो बार बार हो रहा है, और कम से कम 50% जरूर हो रहा है, उसको हम सही मान सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, सांख्यिकी के हिसाब से, गणना के हिसाब से अगर सही है, 100% नहीं भी है, 50% है, तो भी इसको हम मान सकते हैं। सर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, इसको बैक कीजिए, ठीक है। 26 नंबर पर लाइए, 26 कीजिए। At this note, I must say this is not a fight between science and religion. This is a fight between you and irrationality. Irrational जो behavior है, उसके बीच और आपके बीच, हमारे बीच ये फाइट है। I can give you an example why it's not a fight between science and religion. All of you have heard about ISRO. ISRO के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, हम भी जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। क्या है ये? तो अपने देश का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, और आज के डेट में जब से हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इसकी जो एक्टिविटीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी चंद्रयान 2, इतने व्हीकल्स, स्पेस व्हीकल्स बनाए, इतने प्रोजेक्ट किए, इसका नाम पूरी दुनिया में आज के डेट में है। इसरो किसी से कम नहीं है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि इसरो में जहाँ की वैज्ञानिकों का जमा बड़ा है, एक से एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर, देश के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर वहाँ पर है। लेकिन आपको पता है कि जब भी कोई स्पेस व्हीकल लॉन्च होता है, जैसे चंद्रयान 2 भी हुआ था, तो उसका एक प्रोटोटाइप बनता है, और उस प्रोटोटाइप को तिरुपति मंदिर भेजा जाता है, और वहां पर वर्शिप के बाद ही उसको लॉन्च किया जाता है। एक कैसा भी है, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, ऐसा नहीं करेंगे, गलत है, ठीक है। लेकिन इसका लॉजिक क्या है, ये सोचने की बात, ठीक है। और जितना बात हमने आपको कहा और आपने बहुत ही पेशेंस से सुना, मुझे अच्छा लगा। वेल, I conclude this lesson from my side. I think you all must have benefited from today's session. It's been a pleasure for me being with all of you today. Thank you very much for your time and patience hearing. Have a good day. Thank you. 1 minute more. I am sharing assessment link, okay, on SBM group. Please. पर क्या है ये मैं जानना चाहता हूँ। पूरा डिस्कशन हुआ? यस सर। Scientific temper, whatever I conceived, it is a logical way of thinking, Very good. rationalizing things, accepting other people's ideas, though it may not be my belief, my idea, but it may not be acceptable to me also. But I must listen to the ideas of others. That person might belong to different caste, creed, religion, section. We must accept, must contemplate on it, must think over it. If it is logical, we must inculcate in our own life. So welcoming ideas,
thinking rationally and acting rationally, I think this is a scientific temperament. And this must be cultivated in young minds of our school and schools across the world, so that a different world, a different society where true Ram Rajya can be perceived. Thank you, sir. And next question is that how scientific temper is beneficial for our students. At last we are teachers, so is it beneficial for our students? Yes, please. I think it's more and more valuable, and it's more and more playing vital role if we all the teachers are having scientific temperament in us. If we are having scientific temperament, then of course we will use that in our classroom. And if we are using that in our classroom, the student will also learn that. The student will also adopt that. And practically, if we will show or if we will prove our temperament, suppose that if we are going to show the example of the germination of a plant in front of the student, then if we are showing the germination of the plant in our classroom, then sprouted seeds we will sow in front of the student. Then a kind of view, then a kind of representation as scientific temperament will come, or we are filling up in the mind of the student. Then that will be a kind of story in their mindset. And I think there are more and more examples about it. Thank you. Now, third question is that how can we develop scientific temper among students? What are the ways? कौन सा तरीका होगा? कैसे हम डेवलप कर सकते हैं? Sir, by spreading a lots of questions, by spreading